Hello all, myself Smith Thakkar. Welcome you all on my YouTube channel Smith Thakkar. So our today's topic is based on dynamics of machinery, balancing of rotating masses in a different plane, and we are going to solve our first numerical based on these masses that are rotating in a different plane. So on the screen there is a statement of the example. A shaft carries four masses A, B, C and D of magnitude 200, 300, 400 and 200 kg respectively. So there are four masses A, B, C and D, and masses of the respective masses are given to you in magnitude, and the revolving at radius of 80 mm, 70 mm, 60 mm, 80 mm. Okay, so all the radius of rotations are given to you. Okay, so now distances are given to you in planes measured from A, 300 mm, 400 mm, 700 mm. Okay, so distances are given to you. Okay, the angles between the cranks anti-clockwise, A to B 45, B to C 70 and C to D 120. So successive angles between the two masses are also given to you. The balancing masses are to be placed in X and Y planes. Okay, दो और plane add करने हमको X and Y. The distance between the plane A and X is 100 and between X and Y is 400 mm. So both angular position of plane is given to you, and Y and D is 200 mm. If the balancing mass revolve at a radius of 100 mm, please find their magnitude and angular position. So we have to define the magnitude of X and Y, then angular position of X and Y. अभी आपको कैसे पता चलेगा कि this example is based on rotating in a different plane? So there is a distance is given to you from all the masses, so we can easily find out that this example is on the different plane example. Okay, क्योंकि distance is between A and B, B and C, सब एक distance दिया गया है, plane to plane distance. Okay, so now first of all we will write down the data given to us. Then first we will draw this angular position diagram, उसमें आपको angles सब बताए गए हैं. Then we will draw this new diagram, it's known as position of plane diagram. Okay, इन सीक्वेंस हम पहले ए बी सी डी रखेंगे, फिर ए टू एक्स का डिस्टेंस दिया गया है एग्जांपल में, तो वो डालेंगे हम इधर पहले. देन एक्स टू वाई का डिस्टेंस दिया गया है एंड बी टू वाई का डिस्टेंस 200 दिया गया है. ओके, तो जो भी डिस्टेंस हमको दिए गए वो पोजीशंस ऑफ प्लेन डायग्राम में हम मेंशन कर देंगे. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डिफाइन नाउ इन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, finding out how to find out the reference plane, which reference plane we will select, it's very important term here. Okay, now in this particular example we have to define four different things for two particular masses, balance masses X and Y. ठीक है, चार मास है, अनबैलेंस कंडीशन है, उसको बैलेंस करने के लिए हमको दो मास ऐड करेंगे, एक एक्स और एक वाई. अभी वो दोनों का बैलेंस मास कितना मास होगा, वो मास का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है. देन वी हैव टू डिफाइन दी एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स एंड वाई. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जनरली फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम हमको ड्रॉ करना है. अगर तो फोर्स का हम ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर एक्स और वाई दोनों अननोन होंगे. ओके, तो अभी टोटल 6 मासेस हुए, उसमें से 2 अननोन है, तो 6 में से हम 2 डायरेक्टली डिफाइन कर पाएंगे नहीं. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल टेक वन रेफरेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई. एक्स और वाई में से एक रेफरेंस प्लेन ले लेंगे, यानी दोनों का कपल में से एक का कपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जो रेफरेंस प्लेन लेंगे उसका रेफरेंस प्लेन से खुद का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो कपल विल बी 0 फॉर दिस पर्टिकुलर. सो हम इजीली कपल पॉलीगॉन ड्रॉ कर पाएंगे उसके अंदर. सो लेट्स मूव फर्दर. ना आप ये टेबल देख सकते हो. We are selecting X as a reference plane here for this example. Particularly X is as a reference plane. अभी X reference plane लेने के बाद हमको क्या करना है, we have to measure distance of A, B, C, V and Y. पाँचों 5 मासिस का हमको X से डिस्टेंस डिफाइन करना है. तो सभी का डिस्टेंस X से हमको डिफाइन करके इधर X के कॉलम में डालना है. Here it is mentioned distance from the reference plane. It is in the meter now. Okay, so mm is converted into the meter, we can say that. Okay, good. So first of all masses, ये टेबल देख सकते हो आप. पहले हमने ए एक्स बी सी डी वाई एंड डी विथ रिस्पेक्टिव लाइन में हमने वो रख दिया है. देन देयर इज कॉलम ऑफ मास.
सभी के मास जो दिए गए वो रख दिए, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट मास ऑफ x इज mx एंड मास ऑफ y इज my, वी आर एज्यूमिंग दैट, ओके। सो इन रेडियस ऑल्सो गिवन टू यू, सबका रेडियस दिया गया आपको, बैलेंस मास का भी 100 mm रेडियस पे घूमेगा, उसका मैग्नीट्यूड एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है, तो वो भी आपको दिया गया है सिंपली, ओके। देन देयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो इट इज m into r, multiplication of column number 2 and column number 3, it will be column number 4, okay. this is the mass, तो उसमें 0.1 mx 0.1 my वो आएगा x और y में, बाकी सबके वैल्यूज़ है। डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। डिस्टेंस में क्या करना है, ये कॉलम है, फिफ्थ कॉलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ हमको डिस्टेंस a है, तो a का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। नाउ व्हाट इज अवर रेफरेंस प्लेन, x इज अवर रेफरेंस प्लेन, ओके। तो x से उसका डिस्टेंस, अभी a जो है वो x के लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स इट इज नेगेटिव साइड फ्रॉम दी x, सो इट्स डिस्टेंस इज -100 mm, -0.1 मीटर हियर, ओके। ऑल अदर मासेस के जो डिस्टेंसेस है देट आर इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, सो उसकी वैल्यू आएगी सब पॉजिटिव्स, ओके। तो सेम वे b का डिस्टेंस इतना होगा, c का इतना होगा, x का x के डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, b का x के डिस्टेंस, c का x से डिस्टेंस, y का 400 दिया गया है, और d का, ओके। तो सेम वे कपल पॉलीगॉन हम ड्रॉ करें। कपल पॉलीगॉन यानी क्या, कॉलम नंबर 4 इंटू 5, फोर्स इंटू रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू रेडियस। तो फिफ्थ कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया, कपल का कंप्लीट हो गया। अभी कपल वाले में क्या है, आप देख सकते हो कि उसमें हमारे पास x क्या है, 0 है, एक हमको क्या मिल जाएगा, अननोन मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अभी अननोन 1 2 3 4 5 अलग मासेस रह गए कंपेयर टू एक्सक्लूडिंग x 0 हो गया, यानी कपल पॉलीगॉन में हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तो x को छोड़ दो, बाकी 5 मासेस है, उसमें से अननोन कौन सा है, 0.005 my। तो बाय ड्रॉइंग कपल पॉलीगॉन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ my, okay। so let's start how to draw couple polygon। now this is the figure of couple polygon, आप देख सकते हो। now we have to first select the appropriate scale here, okay। पहले स्केल लेना पड़ेगा हमको, okay। so for couple polygon स्केल कैसे लेना है वो हम देखते हैं। अब वैल्यू देखो 1.6, 4.2, 7.2, 0.04 and 9.6। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। तो क्या होगा, 1.6 इज इक्वल टू कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, 1.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, 4.2 तो 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। 7.2 तो 7.2 और 9.6 तो 9.6 की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, गॉट इट, ओके। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम, nomenclature is given to you here, O dash, A dash, B dash, C dash for couple polygon, and for force polygon is A, B, C and D, okay, good। so for drawing couple polygon first is the 1.6 सेंटीमीटर की लाइन स्केल के हिसाब से ड्रॉ करिए, बट इट इज इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, सो इट इज O dash to A dash -0.16 सेंटीमीटर, ओके, पैरेलल टू दिस OA line, but it is in the negative direction, okay। now second is the B, masses of B is in this direction at 45 degree angle, so parallel line ड्रॉ करेंगे इधर of 4.2 सेंटीमीटर। सेम वे C की लाइन ड्रॉ करेंगे 7.2 सेंटीमीटर, ओके। सेम वे लाइन ड्रॉ करेंगे D की, इट इज़ 9.6 सेंटीमीटर, वो ड्रॉ कर दिया। नाउ वी हैव टू जॉइन दिस लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट, सो दिस विल बी दी 0.04 my, ओके, गॉट इट। फ्रॉम दिस कपल पॉलीगॉन, ये जो अभी कंप्लीट करेंगे कपल पॉलीगॉन, इट विल दी रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस कपल, ओके। तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ ये स्केल के हिसाब से हम सेंटीमीटर में उसको नाप लेंगे। फॉर एग्जांपल इट इज़ समथिंग सेंटीमीटर, तो उसको हम वापस कन्वर्ट करेंगे स्केल में, ओके। सो इट विल बी 0.04 my इज इक्वल टू, इधर आया आंसर 7.3 kg इंटू मीटर स्क्वेयर, सो my इज इक्वल टू 182.5 kg। सो फर्स्ट हमने my 182.5 kg हमारा रिजल्ट आ गया, ओके। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ my हियर इन दिस टेबल एंड इन दिस टेबल, तो हमारे पास अभी फोर्स पॉलीगॉन देखो तो सभी नॉन है, my वाला वैल्यू आएगा, इट विल बी नॉन टू अस। सेम में उसका स्केल लेके हमको 0.1 mx अभी डिफाइन करना है, तो सेम में 0.2 है, अभी 0.2 है पॉजिटिव आएगा, नॉट नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ फोर्स पॉलीगॉन, उसमें डिस्टेंस मैटर करता नहीं है। सो 0.2 है, A to B, B to C, C to D, D to E, और लास्ट में जो पेंडिंग रहेगा बाकी रहेगा वो फोर्स पॉलीगॉन कंप्लीट करेंगे। सो इट इज़ 0.1 mx, इनटू स्केल के हिसाब से हम नाप लेंगे ये पूरा लाइन।
कन्वर्टेड इनटू द केजी इनटू मीटर स्क्वायर, और डायरेक्टली हम क्या फाइंड करेंगे mx. सो वैल्यू ऑफ mx इज 355 kg. सो वी हैव इजीली डिफाइंड दिस वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y. अभी क्या करना है, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके अंदर, इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके अंदर. सो इट इज़ द एंगुलर पोजीशन ऑफ x and y इज ऑल्सो डिफाइंड. ओके, सो दिस वे वी कैन इजीली find out this type of example by using graphical method for different plane. Just you have to remember how to find out the reference plane, which plane we have to select as a reference plane, and we have to measure distance from that. Then from couple polygon force polygon diagram we can easily find out the values of x and y, magnitude and angular position. Okay, so thank you. If you have any doubts, please write in the comment box. Okay, you can ask, you can feel free for asking any questions. Okay, so thank you for today's lecture. We'll meet in next lecture. Thank you so much.